Hello class, welcome back. In previous video we have done introduction about profit and loss and we have covered first 5 questions in that video, and today we are going to start from question number 6. Now see question number 6. Question number 6 is Hari bought 20 kg of rice at 36 per kg. This is the first variety. He has bought 20 kg rice at 36 per kg and 25 kg of rice at 32 per kg. This is the second variety. This is first variety and this is second variety. इसके बाद देखिए, he mixed the two varieties and sold the mixture at 38 per kg. Find the gain percent in the whole transaction. Now see question number 6. Total cost of first variety. ये देखिए 36 per kg and he has bought 20 kg. So total cost of first variety will be 20 into 36. Clear? 1 kg का प्राइस क्या था 36 and 20 kg प्राइस क्या होगा 20 into 36, that is 720 rupees. क्लियर? इसके बाद देखिए and 25 kg of rice at 32 per kg. Now total cost of second variety वो क्या होगी 25 इंटू 32. 1 kg का प्राइस क्या था 32 and he has bought 25 kg. So total cost will be 25 into 32, that is rupees 800. Clear? Now total cost price will be cost of first variety plus cost of second variety. Now see total cost price, that is 720 plus 800, that will become 1520 rupees. क्लियर? दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस. अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ही मिक्स द टू वैरायटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 38 पर केजी. अब इसमें देखिए नाउ टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, दैट इज 20 केजी प्लस 25 केजी. नाउ टोटल quantity, that is 20 plus 25, that is 45 kg. क्लियर? इसके बाद देखिए he sold the mixture at 38 per kg. Now selling price उसकी क्या होगी, selling price of mixture. He sold 1 kg rice at 38 per kg and total quantity is 45. So selling price of mixture will be 45 into 38. क्लियर? इसकी आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1710. दिस इज द टोटल selling price. Now see, this is the cost price and this is the selling price. Here selling price is more than cost price. Here selling price is more than cost price. When selling price is more than cost price, there is a profit. And profit आप कैसे निकालते हो, that is selling price minus cost price. Now selling price is 1710 and cost price is 1520. Now subtract this, you will get 190 rupees. This is the profit. एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट. नाउ से प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हो, दैट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100. क्लियर? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100. प्रॉफिट आपके पास क्या था 190 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1520 इंटू 100. क्लियर? 0 से 0 कैंसल,
and 19 1 19 19 8. Clear? Now 4 2s are 8, 4 25. So profit will be 25 by 2%. Clear? How to calculate profit percent? Profit by cost price into 100. Clear? Now see question number 7. Question number 7th is coffee costing 250 per kg. Coffee का प्राइस क्या 250 per kg was mixed with chicory costing 75 per kg. Clear? In the ratio 5:2. आपको रेशियो क्या गिवन है? कॉफी रेशियो चिकुरी आपको क्या गिवन है? 5:2. Clear? Let 5 kg of coffee mixed with 2 kg of chicory. Clear? Let 5 kg of coffee mixed with 2 kg of क्लियर बिकॉज आपको रेशियो क्या गिवन थी 5:2 मीन्स 5 kg ऑफ कॉफी एंड 2 kg ऑफ चिकुरी. अब इसके बाद देखिए कॉफी कोस्टिंग क्या प्राइस है कॉफी का 250 पर केजी एंड देयर इज 5 kg. सो कॉफी का प्राइस क्या होगा 5 इंटू 250. क्लियर? एंड चिकुरी की कॉस्ट क्या आपके पास 75 पर केजी. सो चिकुरी की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 75 इंटू 2. क्लियर? नाउ सी cost price of mixture, that is 250 into 5. This is the cost price of coffee. Clear? 1 kg cost क्या थी 250 and there is 5 kg of coffee. So cost price of coffee will be 250 into 5 and plus cost price of chicory, that is 75 per kg and there are 2 kg of chicory, that is 75 into 2. This is the cost price of mixture. Clear? 250 into 5, that is 125. Clear? And 75 into 2, that is 150. जब आप इनको ऐड करोगे आपके पास क्या आ रहा 1400. दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर. क्लियर? इसके बाद देखिए क्वेश्चन में इफ द मिक्सचर वाज सोल्ड एट 230 पर केजी. नाउ total quantities 5 kg coffee plus 2 kg chicory, that is 7 kg. Now selling price of mixture, sold mixture at a rate of 230 per kg and there are 7 kg. Now 7 into 230, this is the cost price of mixer, that is rupees 1610. Clear? Now this is the cost price and this is the selling price. Here selling price is greater than cost price, so there is a profit. Here selling price is greater than cost price, so there is a profit. So profit आप कैसे निकालते हो? Selling price minus cost price. Selling price is 1610 minus cost price क्या थी आपके पास 1400. जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या रहा 210, दैट इज प्रॉफिट. क्लियर? इसके बाद आपको क्या निकालना प्रॉफिट परसेंट. वो आप कैसे निकालते हो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. क्लियर? नो प्रॉफिट इज 210, कॉस्ट प्राइस इज 1400 इनटू 100. डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल. नाउ सी
7 2 14, 7 30, 2 1 2 15. So profit is of 15%. Clear? Now see question number 8th. क्वेश्चन नंबर 8th इज, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8th में आपको गिवन के, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्नड बाय द डीलर। ये देखिए आपको गिवन के, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोटल्स is equal to cost price of 17 bottles। क्लियर? ये आपको गिवन है। अब देखिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। ये देखिए, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बोतल is equal to x rupees। क्लियर? एंड cost price of each bottle is equal to y rupees। Clear? Because we don't know the selling price and the cost price of the bottle, so आपने let क्या किया, selling price of each bottle x rupees and cost price of each bottle y rupees। Clear? इसके बाद देखिए, कंडीशन आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बोटल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोटल्स। नो, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपके पास क्या बनेगा, वो 16x is equal to 17y। Clear? Because selling price of each bottle is x and there are 16 bottles, so total selling price क्या होगा, 16x। Clear? इसमें देखिए हम x by y की रेशियो निकाल रहे हैं, that is 17/16। क्लियर? नाउ इसके बाद देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बोतल आपके पास है एंड कॉस्ट प्राइस भी आपके पास है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, गेन परसेंट। तो गेन आप कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ गेन पर बोतल आप कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस इज एक्स माइनस कॉस्ट प्राइस इज वाई, सो दिस इज द गेन। क्लियर? इसके बाद आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट। गेन परसेंट आप कैसे निकालते हो, गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर? नो, गेन इज x माइनस वाई। क्लियर? एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बोतल इज x, सॉरी y। क्लियर? इनटू 100%। क्लियर? नो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, x बाय वाई माइनस y बाय वाई इंटू 100। क्लियर? बिकॉज आपका डिनोमिनेटर क्या था, कॉमन। अब इसके बाद देखिए क्या बन रहा है आपका, x बाय वाई माइनस 1 इंटू 100%। क्लियर? एंड x बाय वाई की आपने वैल्यू पहले निकाल रखी है, दैट इज 17/16। तो पुट द वैल्यू ऑफ x बाय वाई, 17/16 माइनस 1 इंटू 100%। क्लियर? अब इसमें एलसीएम आपका क्या आ रहा है, 16, तो 17 माइनस 16 इंटू 100%। क्लियर? अब इसके बाद देखिए 17 माइनस 16 दैट इज 1/16 इंटू 100%। नाउ 4 4 16, 4 25। तो आपका आंसर क्या आ गया, गेन परसेंट दैट इज 25/4%। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको कंडीशन क्या गिवन थी, selling price of 16 bottles is equal to cost price of 17 bottles।
क्लियर। तो आपने सबसे पहले लेट क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बोतल इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बोतल वाई रुपीज। कंडीशन में पुट किया तो आपने क्या वैल्यू निकाली, एक्स बाई वाई। क्लियर। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट गेन, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसके बाद गेन परसेंट, दैट इज गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो इसको आप क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैन गेन्स मींस आपको प्रॉफिट गिवन है, मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या गिवन था, अ मैन गेन्स as much rupees as the selling price of 5 cassettes, that is selling price of 5 cassettes। clear। no, how to calculate gain, आप gain कैसे कैलकुलेट करते हो, that is selling price minus cost price। clear। no, क्वेश्चन में देखिए एक बार, आपका क्वेश्चन क्या था, आपको क्वांटिटी क्या गिवन है, 130 कैसेट्स। नाउ सी नाउ गेन आप कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स। क्लियर। गेन आप कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें देखिए गेन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। पुट वैल्यू ऑफ गेन इन दिस इक्वेशन। नाउ गेन की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स। क्लियर। अब इसमें देखिए, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को, जस्ट वेट, नाउ सी, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 130 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। क्लियर। यहां से इक्वेशन आपकी क्या बन रही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स। फिर आपके पास इक्वेशन क्या बनी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स। अब इसके बाद देखिए, इसी इक्वेशंस को रख के हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नाउ नाउ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैसेट, बिकॉज आपको कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है तो आपने लेट क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैसेट एक्स रुपीस। क्लियर। देयरफॉर cost price of 130 cassettes, that will be 130 x। clear। now cost price of 130 cassettes किसके इक्वल है, that is selling price of 125 cassettes। therefore selling price of 125 cassettes भी क्या होगा, 130x, because आपने वो इक्वल प्रूव किया हुआ है। therefore selling price of 125 cassettes will be equal to 130x। clear।
बिकॉज वो आपने प्रूव्ड अबव किया, दैट इज दिस। Clear now? Selling price of 125 cassettes is 130x rupees. Now, cost price of 125 cassettes वो क्या होगा? That is 125x rupees. Why? Because cost price of one cassette is x. So cost price of 125 cassettes will be 125x. Because आपको क्वांटिटी हमेशा सेम ही रखनी है, तभी तो आप गेन और लॉस परसेंट निकाल पाओगे। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? गेन परसेंट। नाउ सी, गेन परसेंट निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा? गेन। गेन कैसे निकालते हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज 130x माइनस कॉस्ट प्राइस दैट इज 125x। तो माइनस करके आपके पास क्या आ रहा है? 5x रुपीज, दैट इज द गेन। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट आप कैसे निकालते हो? गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। क्लियर? गेन आपके पास क्या? 5x। नो, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या थी आपके पास? 125x। ये देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स दैट इज 125x इंटू 100%। नो, x से x कैंसिल। क्लियर? 5 1 5 25। now 25 1 25 4, so gain percent is 4%। क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था गेन दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स। क्लियर? तो गेन आप कैसे निकालते थे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर? तो उसके बाद हमने क्या किया? गेन की जगह आपने क्या वैल्यू पुट की? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, बिकॉज आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर? वहां से आपने इक्वेशन क्या बनाई? दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स। तो उसके बाद आपने क्या किया? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कैसेट एक्स, सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट विल बी 130x। और उसके बाद आपने क्या किया? सोल्व। क्लियर? घर पे इसकी प्रैक्टिस करना। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11th is, by selling 45 lemons, a vendor loses a sum equal to selling price of 3 lemons. Find the lost person. ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 10th के जैसा, इसको आप ट्राई करना होमवर्क के लिए। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th is, oranges are bought at 6 4 rupees 20। 6 oranges की आपको कॉस्ट क्या गिवन है? 20 रुपीज। एंड आपने सोल्ड किए 4 oranges एट रेट ऑफ 18 रुपीज। आपको क्या निकालना? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आप गेन और लॉस परसेंट तभी निकाल पाओगे जब आपका नंबर सेम होंगे। दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 oranges इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 oranges, मीन्स ऐसे नंबर सेम। ना इसमें देखिए आप कैसे सोल्व करोगे। आपको क्वेश्चन में गिवन के कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 oranges इज इक्वल टू ₹20। क्लियर? तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल सकते हो, दैट इज 20 डिवाइड बाय 6। इसमें देखिए अब आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो हमको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपकी कॉस्ट प्राइस फ्रैक्शन में ना आए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये देखिए, नो, आपके पास क्वांटिटी क्या थी? 6 एंड 4। तो मैं क्या करूंगा? इसमें 6 और 4 का एलसीएम लूंगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 और 4? नाउ सी,
that is 12. तो LCM आपका क्या आ रहा है 12. Now see, cost price of 12 oranges, that is 20 by 6 into 12. Clear? Now cost price of 12 oranges आपके पास क्या आएगी 6162, that is 40 रुपीस. क्लियर? आपकी कोस्ट प्राइस फ्रैक्शन में नहीं आई अब. क्लियर? अब इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 4 रुपीस 18. नाउ सी, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 oranges is rupees 18. Now see, selling price of 1 orange, that will be 18 by 4. क्लियर? अगेन सेलिंग प्राइस आपका किस में आ रहा है फ्रैक्शन में. तो आपको क्या करना होगा, जो एलसीएम है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. क्लियर? नाउ सी, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 oranges. क्लियर? वो आप कैसे निकालोगे, 18 डिवाइड बाय 4 इंटू 12. क्लियर? नाउ 4 1 4 3. नाउ आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 12 oranges will be 18 into 3, that is 54 rupees. Now see, cost price is 40 rupees and selling price is 54 rupees. Here selling price is greater than cost price. Here selling price is greater than cost price, so there is a profit. Now how to calculate profit? That is selling price minus cost price. Now selling price is 54 minus cost price, that is 40. So profit आपके पास क्या आ रहा है 14 रुपीस. तो इसके बाद आपको क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट? दैट इज प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. क्लियर? नाउ प्रॉफिट इज 14 रुपीस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, दैट इज 40 इंटू 100. क्लियर? नाउ 0 से 0 कैंसिल. क्लियर? 2 5 2 2 2 1 2 7. तो प्रॉफिट परसेंट आपके पास क्या आ गया 35%. क्लियर? रिवाइज ऑल क्वेश्चंस डन इन दिस वीडियो. एंड फॉर होमवर्क आपके लिए क्वेश्चंस कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 9th आर फॉर होमवर्क. ओके, थैंक यू क्लास.